Afternoon, students. I hope you all are safe and secure at your homes. So students, as you all know, we have already done exercise 10E. Now today we are going to do exercise 10F and exercise 10G. So without wasting our time, let's move forward. Exercise 10F, which is on page number 93 in your book, right? In this exercise, we will learn about dividing by a decimal fraction. As you can see in this exercise, there are decimal fraction. The dividend is also decimal fraction and the divisor is also decimal fraction up to question number 3. And then we have some different questions in question number 4 and 5. Let's start. Let's learn how to do these type of questions. Okay. They are really very easy. They are really very interesting. Let's do them. Exercise 10F. Okay, question number 1. First part. Let's do this. Question number 1, first part is 0.8 divided by 0.2. You have to divide 0.8 with 0.2. The very first thing which we do in this part is to convert these decimal fractions into common fraction. इनको डेसिमल फ्रैक्शंस को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो. कॉमन में कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखाया है. इफ़ वन डिजिट के पहले डेसिमल इज देयर तो यू विल राइट दैट डिजिट एंड जस्ट पुट 1 0. ओके, 1 के बाद एक 0 आप पुट कर सकते हो. अगेन इन दिस ऑल्सो यू विल राइट इट एज 2/10. ओके, now what you have to do, you have to find out the reciprocal of the second fraction, that is you have to find out the reciprocal of 2/10. So the reciprocal is just the opposite, like 2/10 will become 10/2. Numerator will become denominator and denominator will become numerator. Now the next step is to take 8/10 as it is. 8/10 को as it is रखो. डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो. 2/10 विल बी 10/2. ठीक है. आपका ये जो 2/10 है उसका रेसिप्रोकल वी हैव टू राइट हियर व्हेन वी आर कन्वर्टिंग दिस डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन. 10 से 10 विल गॉट कैंसिल बिकॉज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वी कैन कैंसिल आउट द डिजिट्स. Similarly, it will become 8/2 and 8/2 is equals to 4. So what will be our answer here? Our answer will be 4. समझ में आया? In the same manner, you can do question number 2. Question number 2 का first part is 3.15 divided by 1.5. So very first step is to convert the digits into common fractions. To convert it, it will become 315 divided by 100 because decimal is before 2 digits. Divide, this will become 15/10 just because decimal is before 1 digit. Now you have to find out the reciprocal of the second fraction, which is 15/10. So 15/10 का reciprocal will be 10/15. Now we'll take this first fraction as it is and convert this decimal into multiplication. Write down the reciprocal of 15/10, which is 10/15. 0 से 0 get cancelled. ठीक है. You can see that it is 315 and it is 10. So they both get cancelled by 5. 5 2s are 10, 5 6s are 30 and 5 3s are 15. So this will become 63 divided by 2 into 15 क्योंकि डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होती है. दिस विल बी 63 डिवाइडेड बाय 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 30. नाउ वी हैव टू कैंसिल देम आउट. ठीक है, हम इनको कैंसिल आउट करते हैं और यू कैन डिवाइड देम. अगर हम चाहें तो इनको डिवाइड कर सकते हैं हेयर. 32 60 होता है, माइनस करोगे यू विल गेट अ 3. ठीक है. एंड ऑल्सो अगर आप यहाँ डेसिमल लगाते हो तो आप यहाँ पे एक 0 को एक्सटेंड कर सकते हो. 31 30. सो व्हाट आंसर यू गॉट? यू गॉट योर आंसर एज 2.1. ठीक है, समझ में आया? इसका डिफरेंट तरीका ये है कि आप उसको 3 से कैंसिल आउट करो. 3 2s 6, 3 1s 3, 3 1s 3 0. सो ये क्या हो जाता है 21/10. 21/10 will in turn gives you 2.1 as your answer. So it's your choice whether to divide them like this, whether to cancel out them like this, and then your answer will be similar.
Okay, now moving further, let's do question number third question का first part. Let us do it. Question number 3 का first part is 118.3. You have to divide it with 0.13. So again, the very first step is to write down the numbers into common fraction, the other number as well. This will be 13 by 100, and you have to find out the reciprocal of the second fraction, which is reciprocal of 13 by 100 is 100 by 13. Write this number as it is. Change this division into multiplication and write down the reciprocal. This 0 get cancelled out. ठीक है, now it will become 11830, क्योंकि 1183 को 10 से मल्टीप्लाई किया, you will get this divided by 13. Let's divide the numbers. हम लोग डिवाइड करते हैं 13 को 11830 से. चलो डिवाइड करते हैं. 118 is the first thing. 13 9s are 117 we have. Minus किया, you will get 8 minus 7 1. Note down the next digit. 13 1s are 13. माइनस किया 0, नेक्स्ट डिजिट नोट की. अब जीरोज़ आ तो जीरोज़ ही होता है, तो व्हाट आंसर यू गेट 910 एज योर आंसर. इज इट क्लियर? इट इज़ टू क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट विच इज़ 6 डिवाइडेड बाय 0.4. जैसे कि मैम ने आपको बताया, सबसे पहला स्टेप होता है इज़ टू कन्वर्ट अ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू कॉमन फ्रैक्शन. तो 0.4 विल बी 4 by 10. Now you have to find out the reciprocal of the second fraction. So you have to find out reciprocal of 4 by 10, which is 10 by 4. 4 by 10 का क्या reciprocal है? 10 by 4. So what you have to do? You have to write this first digit as it is, convert this divide into multiply and write down the reciprocal of the other digit, which is 10 by 4. Okay, now what you can do? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो. यू विल गेट 6 into 10 will be 60 डिवाइडेड बाय 4. यू कैन डिवाइड द नंबर्स नाउ. फॉर एग्जाम्पल मैं 60 को 4 से डिवाइड करूँ. 4 1s are 4, माइनस किया, यू विल गेट 2. नोट डाउन द नेक्स्ट डिजिट 0. 4 5s are 20. क्या होगा? 0. ठीक है. सो व्हाट योर आंसर विल बी? योर आंसर विल बी 15. इज इट क्लियर? नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट. आई हैव डन ईच क्वेश्चन. तो हर एक टाइप आपको मिल जाएगा एंड रेस्ट क्वेश्चन यू कैन डू ऑन योर ओन. फिफ्थ क्वेश्चन इज टू डिवाइड 6 विद 0.8. सेम कंडीशन वी विल डू. वी विल कन्वर्ट दिस 0.8 इनटू कॉमन फ्रैक्शन. देन फाइंड आउट द रेसिप्रोकल ऑफ 8 by 10 एंड 8 by 10 का रेसिप्रोकल इज 10 by 8. You have to write this 6 as it is. Divide को you have to convert into multiplication. इसका reciprocal you have to write, which is 10 by 8. Write them. 6 10s are 60 divided by 8. अब आप 8 को 60 से डिवाइड करके देखो कितना आंसर आता है. 8 5s are 40, 8 6s are 48, 8 7s are 56. माइनस किया 4. अब बेटा यू ऑल नो कि जब हम डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ते हैं तो आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए. अगर आप पॉइंट लगाते हो तो एक 0 एक्सटेंड हो जाएगा. 8 5s are 40, माइनस किया 0. व्हाट आंसर यू गेट? यू गेट 7.5 एज योर आंसर. इज इट क्लियर? सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ 10F. यू ऑल कैन डू अदर पार्ट्स ऑन योर ओन. ट्राई टू डू देम, सॉल्व देम. कोई भी डाउट इफ यू हैव, आस्क मी इन द Zoom मीटिंग. Let's start exercise 10G, which is also dividing the numbers. Let's start with our first question. Exercise 10G, question number 1, first part, in which you have to divide 4 with 5. 5 को डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है 4 को. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इफ़ योर डिविडेंड इज स्मॉलर देन योर डिवाइज़र तो यू विल मार्क 0 एंड पुट अ पॉइंट. इस पॉइंट से यू कैन एक्सटेंड 1 0 इन द डिविडेंड. So now 40, it will become 40. 40 is coming in the table of 5. So you will write 5 8s are 40. Subtract करोगे, you will get 0. So what quotient you get here? You get 0.8 as your quotient. Is it clear?
Okay, now let me explain you the next question. Beta, all the questions are of this type only. You just have to know the method and then you can do it on your own. Second का first part is to divide 6 with 75. That means आपको 75 को 6 के साथ divide करना है. बहुत ध्यान से सुनना है. 6 is less than 75. You will write 0. एक point लगाने से आप यहाँ 0 extend कर सकते हो. लेकिन अगर पॉइंट लगाने के बाद आपने 0 एक्सटेंड किया, उसके बावजूद आपका डिविडेंड डिवाइजर से छोटा है, तो आप 1 0 पुट करोगे इन योर क्वेश्चन एंड ऑल्सो इन योर डिविडेंड. नाउ इट विल बिकम 600 एंड दिस इज ग्रेटर देन 75. यू कैन डिवाइड इट नाउ. अब आपको डिवाइड नहीं पता कि 75 का टेबल यू डोंट नो, सो लेट अस फाइंड इट आउट कि हम इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे. लेट्स से 8 से करते हैं. 8 5 40 का 0 कैरी 4, 8 7 56 और 4 60, 600. 75 8 600 माइनस किया you will get 0. That means here your quotient is 0.08. ठीक है, 0 का समझ में आया. ठीक. Now let us do our next question, which is to convert into a decimal फ्रैक्शन. ठीक है, आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में. क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, विच इज़ टू डिवाइड 1/2. 2 को आपको 1 से डिवाइड करना है. बेटा 1 जो है 2 से छोटा है, तो वही 0 के बाद पॉइंट लगाओ. पॉइंट लगाने से आप एक 0 यहाँ एक्सटेंड कर सकते हो. 2 5 10 आप जानते हो, माइनस किया यू विल गेट 0 इन योर आंसर. तो व्हाट विल बी योर क्वेश्चन हियर? योर क्वेश्चन विल बी 0.5. ठीक. अब आपको मैं इसी का एक डिफरेंट क्वेश्चन बताती हूँ. थर्ड का ही मैं ई पार्ट आप लोगों के लिए कर रही हूँ, विच इज़ 1/25. ठीक है, अब इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे. देखो 25 को डिवाइड करना है 1 से. अब 1 25 से छोटा है, तो आप 0 पॉइंट लगा के, पॉइंट से एक 0 एक्सटेंड हो जाती है. पॉइंट लगाने के बाद अगर आपका नंबर जो बना 10 अभी भी 25 से छोटा है, तो आप क्वेश्चन में भी 0 लगाओगे, डिविडेंड में भी 0 लगाओगे. अब देखो 25 4 होता है 100, तो you will get your answer. What your quotient is? Your quotient is 0.04. Understood? Now let me do question number 4 का first part, which is 3/4. You have to divide 3 with 4. 3 छोटा है, 0 पॉइंट के साथ एक 0 एक्सटेंड करो. 4 7 28 माइनस किया 2 मिला. पॉइंट ऑलरेडी है. जब पॉइंट ऑलरेडी होता है तो आप 0 को डिविडेंड में एक्सटेंड कर सकते हो. नाउ यू नो 4 5 20. सो व्हाट विल बी योर आंसर हियर? योर क्वेश्चन इज 0.75. ठीक है, अब यहीं पे मैं आपको फिफ्थ का ए पार्ट समझाती हूँ, विच इज़ 2/20. आपको 20 को डिवाइड करना है 2 से. डेसिमल लगाते ही आप 0 एक्सटेंड कर सकते हो. 21 20 होता है, माइनस किया यू विल गेट योर क्वेश्चन एज 0.1. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का मैं एक पार्ट और आपके लिए करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 का लेट मी डू सी पार्ट फॉर ऑल ऑफ यू. 13/50. 50 को 50 से डिवाइड करना है 13 को. 0 पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 एक्सटेंड हुआ. 15 2 100 होता है, माइनस करोगे यू विल गेट 30. ऑलरेडी पॉइंट लगाया हुआ है, आप एक 0 एक्सटेंड कर सकते हो. 5 6 30, तो 56 300 माइनस करोगे. व्हाट योर आंसर विल बी? योर क्वेश्चन विल बी 0.26. ठीक है, नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, विच इज़ 1:1/4. Always remember, whenever you are having a mixed fraction with you, you have to convert it into a improper fraction. Let's do it. 4 1 4 plus 1 5/4. यानी 4 को डिवाइड करेंगे आप, 4 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो 4 1 4 माइनस किया 1 आया. ऑब्वियसली आपको रिमाइंडर में 0 चाहिए, तो आप पॉइंट लगा के एक 0 एक्सटेंड करोगे. 4 2 8 होता है, माइनस किया 2. अब आपको रिमाइंडर में 0 ही चाहिए, ऑलरेडी डेसिमल लगाया हुआ है, आप एक 0 एक्सटेंड कर सकते हो. 4 5 20 माइनस 0, आपको मिला रिमाइंडर 0. सो व्हाट विल बी योर क्वेश्चन? इट विल बी 1.25. ठीक है, समझ में आया? इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस कर सकते हो. एक्सरसाइज 10 जी के, देर आर नॉट दैट मच क्वेश्चंस, बहुत
बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस है, 6 क्वेश्चंस आर देयर. ट्राई टू डू देम ऑन योर ओन. जो भी डाउट्स, वट एवर डाउट्स, जो भी आपको क्वेरी आती है, मार्क देम एंड आस्क इन द Zoom meeting. Okay, so goodbye students, take care.